who is going to tell me about what is credit card? What is credit card? What is the basic difference between credit card and debit card? Okay. Okay. Yes, who is going to tell me about it? What is credit cards? What is the difference between credit card and debit card? Okay, let's start with that then. See, we already discussed that credit card is a plastic card, which is basically this facility is provided by the bank. And why bank provide the credit card? It is a kind of a short-term loan which is provided in the form of credit card. And if there is no amount is available in your bank account, still you can use your card. Okay? But the limit is already prescribed by the bank. Limit जो होगा बैंक के द्वारा prescribe किया हुआ होगा, और जो limit होगा that will be basically given according to your salary or according to the amount present in your account. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई अकाउंट है उस बैंक में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके आईसीआईसीआई में अकाउंट है और आपका जो बैलेंस है, क्रेडिट जो बैलेंस है वो हमेशा 5-6 लाख इस तरीके से भी रहता है, 1 लाख भी रहता है. So in that situation, the bank is going to provide you the facility of credit card. Or if your salary is, for example, 40,000, then also they will provide you credit card, but the limit will be according to your salary. Okay, so it is a kind of a facility of overdraft, but in the overdraft facility, this is provided to the, किसको प्रोवाइड किया जाता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर द करेंट अकाउंट, राइट? करेंट अकाउंट को ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है, बिजनेस पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है, बट द क्रेडिट कार्ड इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट. इवन स्टूडेंट को भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और क्रेडिट कार्ड आपको नॉर्मल पर्सन जिसके पास सेविंग अकाउंट है, दे कैन ऑल्सो गेट दिस फैसिलिटी. ओके, लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट होगा दैट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्सन. इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड अमाउंट व्हिच इज प्रोवाइडेड टू एवरीवन, बट दैट इज decided by the bank, that how much limit they can provide you. Okay, so let's move toward the book. So credit card is basically an instrument, and it is for what? It is provided for purchasing the product from the different merchant. Like for example, if I want to purchase a mobile phone, I can use my credit card. And in the credit card, you will also get one option, that is the EMI, easy monthly जो installment होता है आपका, you will also get that facility on credit card, right? So credit card is an instrument. It is a instantaneous, instant से instantaneous बना है. Instantaneous का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप तुरंत से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे को यूज कर सकते हो. जैसे अगर आप लोन प्रोसेस कराते हो बैंक में 5 लाख का, so it can take time, right? Either 15 days, 1 month, it will take time. But in the situation of credit card, once you will get it, you can use it at the time only. ठीक है, like एक short term loan ही है जहां पर क्रेडिट कार्ड के बाद मिलने के बाद you can use it after generating the PIN, you can use it anytime, right? Even इसके through you can purchase so many goods and services. But always remember that in the credit card, when we are talking about the withdrawing the cash, that is also prescribed by the bank. Like for example, if I have a credit card and its limit is 60,000, it might be possible that my cash withdrawal limit is only 15,000. ठीक है, तो 60,000 पूरा विड्रॉ कर सकते हो ऐसा नहीं है, बस वो एक अमाउंट है जो आपके क्रेडिट कार्ड में वो लिमिट है जो लगा है, जिसको आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो यूज कर सकते हो. आप कार्ड किसी को दे रहे हो और कार्ड के थ्रू पेमेंट करवा रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन कैश विड्रॉल जो है दैट इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब बाय द बैंक एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लिमिट. ठीक है, एंड इट इज अ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लास्टिक मनी. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं. आजकल तो डिजिटल वाला जमाना आ गया है जहां पर यू कैन थ्रू गूगल पे एंड थ्रू ऑनलाइन साइट यू कैन डू द ऑनलाइन एप्स, बहुत सारे आ गए, भीम ऐप, यूपीआई थ्रू विच यू कैन मेक द पेमेंट. तो प्लास्टिक कार्ड भी अब ओल्ड हो गया एक तरीके से, प्लास्टिक मनी. सो सच कार्ड आर इशूड बाय द बैंक. और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो ये क्रेडिट कार्ड है दैट इज ऑलवेज इशूड बाय द बैंक एंड विद द इनकम.
विथ इनकम्स अबव सर्टेन मिनिमम लिमिट। और हाँ, एक और भी चीज मैं बता दूं आपको कि हर एक बैंक का अपना अपना नॉर्म्स होता है इसके लिए। कोई भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स हो, जैसे बैंक में एक नॉर्म है कि जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर होगी उनको ही क्रेडिट कार्ड देंगे। So that is also one of the policy. According to income, they are basically making the norms. But the amount can be varied. Like agar someone is earning 25, then the amount can be the minimum amount. The limit will be minimum. And if someone is earning more than 1 lakh, maybe their limit is more than 1 lakh. So in short, we can say that such card are issued by the bank to the person with incomes above the certain minimum limit, जो minimum limit को cross करेगा, and accepted by variety of business establishment, बहुत सारे business establishment के मतलब and are accepted by variety of business establishment। मतलब यहाँ पर कार्ड को जो इशू किया जाएगा, यहाँ पर कुछ पार्टीज भी दी हुई हैं, याद रखिएगा 3 पार्टी है, द इशूइंग बैंक, द कार्ड होल्डर एंड द मेंबर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, और बहुत सारे बिजनेस स्टैब्लिशमेंट जो है, मतलब बहुत सारे बिजनेस पर्सन को भी कार्ड मिलता है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस के लिए भी कार्ड मिलता है, बिजनेस स्टैब्लिशमेंट के नाम पे भी कार्ड मिलता है, यानी कंपनी के नाम पे भी क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लीडिंग इंडियन बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, कुछ फॉरेन बैंक है जैसे आपका सिटी बैंक हो गया, आपका HSBC हो गया, आपका ANJ हो गया। सो ये सारे बैंक जो हैं, दे आर द इशूअर्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी, सम ऑफ देम इंसिस्ट ऑन द कार्ड होल्डर बीइंग देयर कस्टमर व्हाइल अदर्स डू नॉट। और कई बार ऐसा भी होता है कि कार्ड होल्डर्स जो है वो उनके कस्टमर होने चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाता है कार्ड, और कई बार जरूरी नहीं है कि आप उनके बेसिकली कस्टमर हो। अब यहाँ पर कुछ ये भी चीज है कि कई बार क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ प्रिस्क्राइब फी भी लिया जाता है, पूरे ईयर में कई बार फी लिया जाता है, मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस कई बार लिया जाता है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है तो क्रेडिट कार्ड देने के लिए। इसीलिए आप जिन्होंने नोटिस किया होगा कि बैंक बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है टू टेक द क्रेडिट कार्ड, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन फॉर गेटिंग द अमाउंट। लाइक लोन पे जैसे बैंक को पैसे मिलते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाने से भी इनकम होता है बैंक को। सो सम मतलब जो क्रेडिट कार्ड जो होंगे वो आपकी कोई भी कॉमर्शियल जो शॉप्स होंगे, जैसे आप किसी ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट, बट दे हैव फैसिलिटी टू टेक द कार्ड। यानी कार्ड को बेसिकली स्कैन करने के लिए दे रिक्वायर्ड अ मशीन, अगर उनके पास वो अवेलेबल है, सो दे कैन इजिली एक्सेप्ट योर कार्ड। You can do the payment for purchasing various goods and services. That can be the commercial establishment, shops, hotels, travel agencies, even अभी तो आप कोई फॉर्म भी फिल करते हैं तो you can easily able to use your credit card. ठीक है, and जो कार्ड होल्डर्स होंगे make purchases or avail any of the services or at the member establishment, he signs a charge slip. तो कई बार ये चीज होता है कि जो भी आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यू विल गेट द चार्ज स्लिप ऑफ दैट एंड यू जस्ट नीड टू साइन ओवर इट, राइट। ये एक पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई द सिग्नेचर ऑन द क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड पे जो सिग्नेचर किया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार आपसे साइन लिया जाता है स्लिप पर। ठीक है, और एक कॉपी जो है वो कस्टमर को दिया जाता है, और एक कॉपी जो है एस्टैब्लिशमेंट या जो कॉमर्शियल कोई भी स्टोर है वो अपने पास रखती है। एक कॉपी अपने पास रखेगी, एक कॉपी वो आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और कई बार होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसा देते हैं, पे करते हैं, तो 2 to 4% कई बार आपका एक्स्ट्रा पैसा भी लग जाता है, जिसको हम ट्रांजेक्शन फी भी कहते हैं। और आपने ये चीज नोटिस किया होगा, दैट इज ऑल्सो व्हेन वी आर बेसिकली टेकिंग द फ्लाई, बोल सकते हैं एयर टिकट, और जब हम रेलवे टिकट लेते हैं तब भी हमारा ट्रांजेक्शन फीस, कुछ मिनिमम ट्रांजेक्शन फी हमें देना पड़ता है, राइट। सो अब ये जो बैंक है, दे आर सेंडिंग यू द बिल्स इन द पीरियोडिक वे, यानी हर मंथ आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और एक within some days you just need to make payment. What I earlier said that 45 days are provided by the bank, कि आप 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होता है। आपका एक डेट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है
and I have date till 15 that I need to make the payment whatever I basically expended last month. ठीक है, तो एक पीरियोडिक वे में आपके पास उस बिल का पूरा ट्रांजैक्शन का आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाएगा जो बैंक हर एक अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर को सेंड करती है. ठीक है, और जो कार्ड होल्डर है वो अवेल्स ऑफ क्रेडिट फॉर पीरियड रेंजिंग 30 to 40 डेज, मतलब वही कहीं एक महीना, कहीं एक महीना 10 दिन, कहीं 1.5 महीना, मतलब इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं रहेगा. मतलब यू विल नेवर गेट 6 month or 1 year to make the payment of credit card. Yes, you will do it, but for that you have to pay a very heavy interest rate. जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, so credit card is one of the highly profitable business for the issuing bank. ठीक है, मतलब जो इशूइंग बैंक है उनके लिए सब बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल, इनके लिए ये आपका बोल सकते हैं बिजनेस. अच्छा, समझ आ रहा है एवरीवन? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्विस में, सॉरी. नेक्स्ट वन इज लाइक क्रेडिट कार्ड जो बिजनेस है, मैंने बोला भी आपको हाईली प्रॉफिटेबल है इशूइंग बैंक के लिए, और कहीं ना कहीं आपके पास क्रेडिट कार्ड होल्डर के पास हर महीने, मतलब हर टाइम का एक 60,000 या 80,000 जो भी लिमिट है वो हमेशा अवेलेबल है. आप जितनी जल्दी पेमेंट करिएगा वो अमाउंट उतनी जल्दी आपके पास बैक होता जाएगा. यानी एग्जांपल के लिए, आई हैव 60,000 रुपीज इन माई क्रेडिट कार्ड लिमिट इज, फॉर एग्जांपल आई 60,000 है मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट, एंड आई परचेज और आई स्पेंडेड 30,000 इन मंथ ऑफ जैन, एग्जाम्पल के लिए. If I will pay it within 30 days or 20 days, then 30,000 मैंने फिर से उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया, तो अगेन दैट विल बिकम 60,000. ठीक है, तो जितनी जल्दी आप उसको पेमेंट करते जाओगे उतना ज्यादा आपके पास वो जो लिमिट है वो बोल सकते हैं ना कि बना रहेगा आपके पास. राइट, यहाँ तक समझ में आ गई बात? सो एक अमाउंट जो है जो आपके पास हमेशा एक ब्लॉक फॉर्म में रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है उसका एक रीजन क्या है, मतलब वो क्यों हाईली प्रॉफिटेबल? बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट विच द बैंक इज टेकिंग. और भी कुछ एडवांटेजेस हैं कार्ड होल्डर्स के. क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के? फर्स्ट इज द सम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक्स एंटर अप इनटू द एग्रीमेंट विद अदर बैंक्स फॉर इशूइंग कार्ड्स. कैन, जैसे कुछ ऐसे भी आपके बैंक हैं जो दूसरे बैंक के साथ या फिर कोई सब्सिडियरी कंपनी उन्होंने अपना शुरू किया है, and they started working with other companies for providing the credit cards. ठीक है, तो एक टाई अप भी चल रहा है, जैसे आपके कैन कार्ड्स ऑफ कैनरा बैंक. ठीक है, they are issued by 7 other members बैंक, मतलब बाकी और भी बहुत सारे उसके मेंबर्स बैंक के जिनके थ्रू क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है. बैंक जो है दे आर ऑल्सो परमिट द विड्रॉल ऑफ द कैश विड्रॉल भी वो परमिट आपको करता है जैसे डेबिट कार्ड में है. लेकिन डेबिट कार्ड में तो आपके खुद के पैसे हैं जो आपके सेविंग अकाउंट में, यू कैन विड्रॉ दैट मनी, बट इवन द क्रेडिट कार्ड होल्डर हैव राइट टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द एटीएम. लाइक डेबिट कार्ड की तरह आप किसी भी एटीएम में जाकर उस क्रेडिट कार्ड से पैसा को विड्रॉ कर सकते हो. लेकिन उसमें वही मैंने कंडीशन बताया था कि कभी भी याद रखिएगा कि लिमिट आपका 60,000 हो सकता है जिसको आप कार्ड के थ्रू और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं. लेकिन जहां विड्रॉल वाला सिचुएशन आएगा वहां पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉल के लिए भी अमाउंट जो है वो प्रेस्क्राइब है. जैसे लाइक एग्जांपल में कई बार वो 25% के अराउंड होता है, दैट इज नॉट मोर देन दैट. ठीक है, 20% और 25% हार्डली. ठीक है, तो आपके पास परमिशन है कि यू कैन ऑल्सो विड्रॉल द अमाउंट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि आपके पास बैंक के पास ऑल्सो देयर आर सम फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैशबैक का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है. ठीक है, इफ यू विल परचेज समथिंग यू विल गेट कैशबैक, सच काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन जो एक तरीके से चल रहा है कैशबैक का, वो हम लोग देख रहे हैं. सो यहाँ पर आपको बहुत सारे एडिशनल इंसेंटिव तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ में कई बार कार्ड होल्डर्स के लिए पर्सनल इंश्योरेंस के स्कीम्स भी अवेलेबल होते हैं. राइट, सो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू द कार्ड होल्डर एंड देयर फैमिली, एंड दैट इज अप टू 3 to 4 लाख. ठीक है, तो दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइड टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स.
and they can also, the credit card holders have also so many facilities. They can avail the facilities such as booking air ticket on phone through credit card. And और यहाँ पर एक और चीज है, in case the card is lost, the card holder has a limited liability usually up to 1000. तो अगर आपका कार्ड गुम हो गया, क्रेडिट कार्ड, तो आपकी जो लाइबिलिटी होगी दैट इज ओनली 1000. मतलब कि अगर आपका लिमिट 60,000 का है बट यू हैव टू पे ओनली 1000 रुपीज, मतलब आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी वाला सीन है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं कि जितना भी पैसा होगा सब आपको पे करना है, बट द अमाउंट विल बी 1000. ठीक है, यूजुअली अप टू 1000. इन अ केस द कार्ड इज लॉस्ट, द कार्ड होल्डर हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, दे हैव टू पे अप टू 1000. कैसे जब आपको क्रेडिट कार्ड देता है, पहली चीज देखो, क्रेडिट कार्ड के लिए इंसिस्ट तो कई बैंक करता है आपको कि यू हैव टू टेक क्रेडिट कार्ड, बट विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम द customers it is not possible for bank to provide you credit card. So first they will satisfy themselves, yes you are okay with, we can give you credit card. And the next one is up to है तो yes you can pay 1 rupees 100 110 means up to मतलब 1000 तक. ठीक है, what is the difference between credit card and debit card? तो I guess आप लोग को ये क्लियर होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंसेस. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. So what is the difference between credit card and debit card? तो first one is कि it is pay later product, मतलब एक बार जब आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया एट द टाइम आपके पैसे नहीं कटे हैं, वो एक तरीके से बैंक के पैसे कटे हैं. ठीक है, सो इट इज पे लेटर प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब कि ये प्रोडक्ट जो भी आप खरीद रहे हैं, कुछ भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें बैंक का पैसा डिडक्ट हो रहा है, एक तरीके से आपके पैसे डिडक्ट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन डेबिट कार्ड में आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपके पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, यानी जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है वो पैसा आपका डिडक्ट हो रहा है. ठीक है, सेकेंड क्या है, जो डेबिट होगा, डेबिट कार्ड में जो भी पैसे डेबिट होंगे दैट विल बी इमीडिएटली फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट, यानी कस्टमर के अकाउंट से वो एट द टाइम डेबिट हो जाएंगे. कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो रहा है तुरंत, यानी सेविंग अकाउंट में मान लीजिए मेरे पास 5000 है और 1000 का मैंने परचेज किया तो 4000 बचे, 1000 तुरंत से मेरे अकाउंट से डेबिट. राइट, नेक्स्ट वन इज कि कार्ड होल्डर जो होंगे, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे, उनके अकाउंट से तो पैसा डिडक्ट हुआ नहीं है, उनके आपके बेसिकली क्रेडिट कार्ड से पैसा डिडक्ट हुआ है. इट मींस कि आपके लोन का जो मतलब जो पैसा है वो डिडक्ट हुआ है, आपके शॉर्ट टर्म लोन मतलब क्रेडिट कार्ड में जो पैसे हैं वो डिडक्ट हुआ है. लेकिन एक और यहाँ सिचुएशन है कि आप कई बार ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ले सकते हैं. ऑटो डेबिट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अपने क्रेडिट कार्ड को अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर दिया, इसीलिए जब वो दोनों लिंक रहेगा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पैसे सेविंग अकाउंट से कटेंगे, आपके वो कार्ड से कटेगा. लेकिन जैसे ही विद इन 1 मंथ आपका डेट नियर बाई आएगा पेमेंट का, फिर वो जाके 30 या 45 डेज के बाद आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होगा पैसा. आई बात समझ में? यानी इमीडिएटली आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डेबिट कार्ड को यूज करने में डिडक्ट होगा, ना कि क्रेडिट कार्ड को. सो क्रेडिट कार्ड को यूज करने के 30 और 45 डेज व्हाटएवर इज प्रिस्क्राइब बाय द बैंक, आपके सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट के फॉर्म में पैसा डिडक्ट होगा. कई जगह पे ऑटो डेबिट की फैसिलिटी नहीं होती है, ऐसे सिचुएशन में पेमेंट खुद आपको करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस? सबको क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इज कि नो सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट कार्ड सिस्टम. मतलब कि यहाँ पर आपको कोई ज्यादा कम्युनिकेशन, मतलब इन शॉर्ट, मतलब ये पॉइंट पता नहीं क्यों इन्होंने लिखा है, इसका कोई ऐसे रेलेवेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए. नेक्स्ट बस लिखेगा कि क्रेडिट कार्ड के लिए ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड मेंटेनिंग रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट इज नॉट एसेंशियल. मतलब कि क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्रेडिट कार्ड के सिचुएशन में आपको बैंक अकाउंट ओपन कराने की या फिर मिनिमम, अच्छा मिनिमम अमाउंट क्या होता है, वो अमाउंट जो हमेशा आपको अपने बैंक में मेंटेन करके रखना पड़ता है. जैसे आपके जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उसका मिनिमम अमाउंट लगभग 1000 हार्डली है, 1000 2000, नॉट मोर देन दैट. राइट, but same if we'll move toward the ICICI and HDFC, their minimum amount is 25,000, 10,000 like this. ठीक है, 25,000 you have to maintain in your saving account, right? So in short we can say like this situation, this condition is not applied in the case of the credit card,
But in the case of debit card, you will get that facility only when your account is with that bank. यानी डेबिट कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट उस बैंक में है, ठीक है, अदरवाइज यू विल नेवर गेट डेबिट कार्ड. क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन प्लीज राइट द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. ओके, सो इन द सिचुएशन ऑफ द क्रेडिट कार्ड, रिस्क की अगर हम बात करें तो दोनों में ही आपके रिस्क जो है वो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है. हाउ? सो क्रेडिट कार्ड में जो आपका रिस्क है, उस फ्रॉड जो है दैट इज हाई. अगर आपके पैसे गए, चोरी हो गए, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड गिर गया, सो डेफिनेटली रिस्क वहां पर भी है. और डेबिट कार्ड में भी अगर आपका वो डेबिट कार्ड कहीं भी गुम हो गया या फिर लॉस्ट हो गया, तो इसमें भी आपका रिस्क है, ठीक है. तो दोनों सिचुएशन में जो पैसे का लॉस है वो आपको बेसिकली आपका ही पैसे का लॉस होगा, ठीक है. चलिए, एंड आई गेस यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. Anyone have any doubt in differences of credit card and debit card? No ma'am. ठीक है, अच्छा, मैं डेबिट कार्ड्स पे भी आऊंगी मैं, डोंट वरी अबाउट इट. चलिए, so next one is what is the difference between credit card and traveler check? So what is traveler check? Who is going to tell me about it? Traveler checks. बुक नहीं बना है मैम. Difference between credit cards and traveler check, right? So what is traveler check? What are traveler checks? Yes, Priya. Ma'am, it is a universally accepted check, and it is the instrument issued by the bank itself to make the payment from one place to another. And when we issue the traveler check from the bank, then we not need to carry money with ourselves for traveling, and we can convert traveler check into the money when we need. Very good, very nice. Yes, Ashutosh. Yes, Ashutosh. Traveler check is a type of yes, ma'am. Traveler check is a type of check that is purchased by any bank and from anywhere, and traveler check doesn't charge any commission, and traveler check is encashed any time at any place, and traveler check is easy to carry anywhere. It doesn't involve any risk. Yes ma'am, that's all. Very good. So basically the traveler check जो है उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, either in India if you are traveling or out of India if you are traveling, you can use the travel check. So this facility is provided by some of the bank. और आपको यहाँ पर traveler check लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? You have to give the money. For example, if I want the traveler check of 2,000 rupees, I just need to pay 2,000 and I'll get the traveler check of 2,000. ठीक है? किसी भी नंबर का, किसी भी डिनोमिनेशन का I can purchase the traveler check. For this facility, the bank is not charging a single amount. 1 रुपए भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है ट्रैवलर चेक की फैसिलिटी के लिए. लेकिन एक और भी चीज है कि ट्रैवलर चेक में कभी भी आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो लिक्विड फॉर्म में, यानी कैश के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो. कोई भी लिमिट यहाँ पर, कोई भी डेट या कोई लास्ट डेट इसमें मेंशन नहीं है. और जब आपको पैसा मिलेगा, यानी कि मान लीजिए कि 2,000 रुपीज मेरे पास SBI बैंक में है इन फॉर्म ऑफ ट्रैवलर चेक, तो जब भी मुझे वो 2,000 रुपीज मिलेगा, दैट विल बी ओनली 2,000. आई विल नेवर गेट इंटरेस्ट ओवर दैट अमाउंट एज वेल. So the bank is not charging a single penny, and they are not even giving you a single penny as an interest if you will convert the traveler check in the liquid form after 1 year or 2 years. ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई भी डिनोमिनेशन का बनवा सकते हो. और ट्रैवलर चेक जो है एक सिक्योर फॉर्म इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज द साइन जो होगा उस आपका ही साइन के बिना वो ट्रैवलर चेक आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, तो कभी भी अगर ट्रैवलर चेक लॉस्ट भी हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन इन्फॉर्म बैंक अबाउट दिस. आप इन्फॉर्म कर सकते हैं बैंक में. आपके उस ट्रैवलर चेक को कोई भी दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता है. क्लियर हो गई बात, समझ में आया?
क्योंकि आपके फीस में सिग्नेचर इज ऑलरेडी अवेलेबल इन बैंक, राइट? ओके, सो ट्रैवलर चेक में और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, जो ऑब्जेक्टिव है ट्रैवलर चेक का इज टू इनेबल इट्स होल्डर टू ट्रैवल केयर फ्री विदाउट रिस्क ऑफ लॉस ऑफ मनी इन ट्रांजिट and to encash them as when he need money. But a credit card enables its holder to purchase goods and services on credit and pay later. यानी क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको क्या करता है, फैसिलिटी देता है कि आप कभी भी कोई भी गुड्स को सर्विसेज को परचेज कर सकते हो, पेमेंट बाद में कर दीजिए बैंक को, ठीक है? लेकिन ट्रैवलर चेक वहीं पर आपको एक बोल सकते हैं ट्रैवल करने में, ट्रैवल आप कहीं भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रीली सेफली उसको लेकर के, ट्रैवल चेक को लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। अगर कोई भी लॉस भी हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका कोई भी हार्म नहीं है, ठीक है? सो सिक्योरिटी पर्पस और जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों का अलग है। लाइक ट्रैवलर चेक का है कि आप ट्रैवल कीजिए, जब जरूरत हो उसको इन कैश कराइए और फिर उसको यूज कीजिए ट्रैवलर चेक को। क्रेडिट कार्ड को कभी भी यूज कीजिए और पेमेंट बैंक को बाद में कीजिए, ठीक है? लेकिन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक मेजर डिफरेंस पता है क्या है? डेबिट ये आपको सॉरी ट्रैवलर चेक में और क्रेडिट कार्ड में पता है डिफरेंस क्या है? एक क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको बैंक अपनी तरफ से पहले पैसा दे रहा है और बाद में पैसा ले रहा है, राइट? बट इन द ट्रैवलर चेक फर्स्ट यू नीड टू पे द मनी टू द बैंक, आफ्टर दैट यू विल गेट ट्रैवलर चेक, राइट? ये मेजर डिफरेंस समझ में आया कि क्रेडिट कार्ड में आपको पैसे की फैसिलिटी तो मिल रही है, अमाउंट की फैसिलिटी मिल रही है, यू कैन यूज अप टू 60,000, but you don't need to pay 60,000 at the time when you are taking credit card from the bank, right? But in the same in the next other situation, the traveler check, first you need to pay money, after that you will get that traveler check of that amount. Like if I am paying 2,000, on behalf of that 2,000 they are going to give me traveler check, right? Clear हो गई बात, समझ में आया? Okay, next one, the consideration of traveler check is to pay to the bank in advance. Yes, I already told you this point, I guess. Okay, so I already elaborated, so I don't need to repeat it once again. So the next one is that traveler check are issued by bank free of cost. They are not going to take a single amount for giving this facility. But in the situation of credit card, if you are delayed in payment the bill, अगर आपने late कर दिया payment करने में bill को, तो ऐसे सिचुएशन में दे विल चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट, एज वेल एज देयर आर सम बोल सकते हैं कि आपको इसके अलावा बहुत सारी चीजें फीस जो है पेमेंट करनी पड़ती है इफ यू आर टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, लाइक एनुअल फी इज देयर, ठीक है? द ट्रांजेक्शन फी इज देयर इन सम ऑफ द, अगर हम कुछ जैसे मैंने फॉर्म मान लीजिए फिल किया, तो कई जगह पे ऐसे भी है कि जब आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो यू हैव टू पे द ट्रांजैक्शन फी, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन फी, एनुअल फीस, सर्विस चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट आर सम एडिशनल थिंग्स व्हिच यू नीड टू पे विद क्रेडिट कार्ड, ठीक है? क्रेडिट कार्ड के बिल के साथ कई बार ये सारी चीजें भी आपको पे करनी पड़ती है। But this in the same situation, if you see the traveler check, you don't need to pay a single penny for that, as well as the bank is holding your money, so they are even not going to pay you single interest on that. Clear हो गई बात, समझ में आ गया? सारे differences clear हो रहे हैं? Next difference is the traveler checks are printed for fixed denominations, यानी कुछ fixed denominations, denomination जैसे कैसे होता है कि आपका एक amount जो money है, जैसे 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 21 रुपए का नोट आता है क्या? 21 रुपीस का नोट? No, right? But we have a denomination in coins like 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees. Same is with the notes, like 1 rupees note was earlier there, 2 rupees note was earlier there, 5 rupees notes are earlier there, but nowadays we are able to see the 10 rupees note, 20 rupees note, and 50 rupees note, 100 rupees, 500 and 2000, है ना? So these are the denomination, and the same thing is with traveler check as well. Like you will get the traveler check in a printed form with the particular denomination is written over it, right? Like 500 is written, okay? But the same thing is not with the credit card. You will get the card number over that, CVV number is there, magnetic strip is there, but you will never get the amount written over it. Like 60,000 is limited, that is not written over the credit card, right? So that is in the printed form and that is in the plastic form, we can say.
ठीक है. So I guess the difference between the traveler check and credit cards are already you all are able to understand these points or not? Yes, ma'am. Clear हो गया? किसी को कोई doubt है? Anyone have any doubt? Okay. So debit card basically this facility is provided to the account holder of the bank. ठीक है, to withdraw the money from via using the ATM. What is ATM? Automatic teller machine. Automatic teller machine. Teller machine, ATM, right? So for withdrawing the money from ATM, we can use the debit card, right? So अभी अगर हम बात करें ATMs की, तो लगभग 140 कंट्रीज में ATMs जो हैं वो हैं, और डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो है इट इज प्रोवाइडेड से इन द सेम वे ऑफ द क्रेडिट कार्ड, बट वही डिफरेंस तो मैंने आपको खैर बता ही दिया है. जो कार्ड होल्डर्स होंगे दे हैव टू if they are using debit card, the amount will be directly deducted from their saving account. लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में कंपैरेटिवली आपका जो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह यहाँ पर भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा. ये एक बेनिफिट है डेबिट कार्ड के साथ, बिकॉज यू आर यूजिंग योर ओन मनी. सो इन शॉर्ट यू डोंट नीड टू पे द इंटरेस्ट रेट लाइक द क्रेडिट कार्ड. अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं आपके डेबिट कार्ड से रिलेटेड. ठीक है. So bank render a useful service to their customer by complying with their standing instructions. Some instructions are made for the bank for the customers, and these instructions are given. These instructions are the instruction given by customer to his banker, which relate to certain financial dealing. अब यहाँ पर कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, यानी कि यहाँ कस्टमर इंस्ट्रक्शन कस्टमर को बैंक नहीं दे रहा है, बैंक कस्टमर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है. जैसे मान लो, मैं इसमें आप लोगों को पहले ही बताती हूँ थोड़ा, जैसे कि हम लोग को हर मंथ बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है. सो वी ऑलरेडी सेंड इंस्ट्रक्शन टू द बैंक अबाउट द ऑटो डेबिट कि इतना पर्टिकुलर जो अमाउंट है जैसे मैंने डाला वैसे ही वो डिडक्ट. कई बार तो ऑटो डेबिट हो जाता है जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में, लेकिन जैसे बिल है वो हर बार वैरी करता है. जैसे बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस मंथ 1500 है, नेक्स्ट मंथ 2000 है, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन नॉट यूज द ऑटो डेबिट सिचुएशन, बट यस you can pay your bill via using the online internet banking and all. So वही एक तरीके से उसी के बारे में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उसी को बोल रहे हैं कि यहाँ पर अपने फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेटेड आप अपने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकते हो. ठीक है, रिसिप्ट्स के ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर. ठीक है. अब ये इन मतलब कस्टमर के बिहाफ में हाउ दे विल हैंडल दीज ट्रांजेक्शन, दैट इज डन बाय द बैंक. ठीक है, बट द इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द कस्टमर ओनली. आफ्टर दैट द बैंक हैव राइट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग. जैसे एग्जांपल के लिए कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लिया है और हर मंथ का जैसे मैंने उसको अपने सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर दिया है कि जैसे ही इस ये डेट आएगा आप इसमें से पैसा डिडक्ट कर लेना, तो वो ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है. सो दिस इज नॉट डन, ये बैंक अपने तरफ से नहीं कर रहा है. आई बेसिकली गिव this instruction to the bank, right? So यहाँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में जो बैंक है वो कस्टमर के बिहाफ में किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है वो उसकी बात की जा रही है. ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शंस जो है दैट इज ऑब्वियसली रिलेटेड विद द फाइनेंशियल डीलिंग. जैसे एग्जांपल के लिए पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी पीरियोडिकली, मतलब हर महीने जैसे मेरा प्रीमियम जा रहा है 1000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी में, LIC में मेरा जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसमें मेरा 1000 रुपीज जा रहा है, तो हर महीने वो जो 1000 रुपीज है वो 1 to 5 मंथ के 1 से 5 तारीख के बीच में डिडक्ट हो रहा है. ठीक है, सो आई गिव दिस इंस्ट्रक्शन टू द बैंक, सो द अमाउंट इज गोइंग टू पे by the bank on behalf of customer to the insurance company. यानी बैंक जो है वो पैसे को डिडक्ट करेगा और आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पेमेंट करेगा. किसके बिहाफ में ये कर रहा है? कस्टमर के बिहाफ में. आई बात समझ में? फर्स्ट. सेकेंड थिंग, पेमेंट ऑफ पीरियोडिक मेंबरशिप फी ऑफ द क्लब्स, लाइब्रेरी, प्रोफेशनल एसोसिएशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन.
लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये ऑटो डेबिट या जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है दैट इज बेसिकली वर्क व्हेन, अगर आपने इसमें ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ले रखी है तो आपका जो अमाउंट होना चाहिए वो स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए, यानी हर बार 1000 रुपीज डिडक्ट हो रहा है तो हर बार 1000 होगा। लेकिन जहां पैसा आपका वैरी करता है वहां पर आप खुद से पेमेंट करें तो बेटर है ना। सो अगर आपको पीरियोडिक मेंबरशिप फी जैसे 1500 आपका 3 मंथ का फी है क्लब का, तो 1500 हर 3 मंथ में अपने आप बैंक डिडक्ट करेगा और पर्टिकुलर उस क्लब के पास वो पैसा सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। पेमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ बिल्स ऑफ द कस्टमर, वो कौन करता है? ऑब्वियसली आप बैंक करता है आपके बिहाफ पे, ऑटो डेबिट के थ्रू या फिर नॉर्मल आपके पेमेंट के थ्रू, लेकिन बैंक ही के थ्रू तो आप कर रहे हो ना। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अकाउंट ऑफ द कस्टमर टू द अनदर अकाउंट, मतलब एक अकाउंट से हमने पैसा ट्रांसफर कराया दूसरे के अकाउंट में, कौन कर रहा है ये काम? बैंक कर रहा है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर ने अगर शेयर्स वगैरह कुछ भी परचेज किया हुआ स्टॉक मार्केट में अगर डील कर रहा है तो डिविडेंड भी बेसिकली ले सकता है बैंक किसके बिहाफ में? कस्टमर के बिहाफ में। Collection of pension in the government department from the government department, who will do that? Bank, right? So in short we can say that the standing instructions are those instructions which is given by the customer to the bank for the financial dealing. Like what financial dealing? Like receipts, transfer or payment of money. Okay, so these are known as standing instruction. And debit card, I already elaborated about it as well. So there is a not so much difference between credit card and debit card. Both are the part of the plastic money, but the debit card facility is only provided when the account is in that bank. But the credit card facility, for this you don't need to require to be the account holder or the customer of the bank, right? Okay, next point I guess clear. So bank also provide the custody or the services for keeping your valuable items with themselves. For the protection purpose, they are providing you this facility, right? So customer can use the safe custody services, which is given by the bank. And they are basically keeping those items in the strong rooms. That is helpful, yeah, that is for the protection purpose. So there are the two ways through which they can protect your valuable items. मतलब customers के valuable items को protect करने का दो तरीका है. The first one is accepting the valuables, jewelry, document, title, deeds, etc. मतलब valuables में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी jewelry हो सकती है, property की papers हो सकते हैं, deeds, कुछ भी अगर ऐसा है, so they can accept it, accepting the valuables for safe custody. And the second thing, they can hire you the सेफ डिपॉजिट वॉल्ट और लॉकर, मतलब उन्होंने आपको खुद लॉकर प्रोवाइड कर देना है और फिर आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप योर वैल्यूएबल आइटम इन दैट लॉकर, आइदर यू कैन गिव दूज आइटम्स, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस समझिए, जैसे आई हैव दिस प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एंड दिस इज अवेलेबल फॉर मी, so I am just giving this product to the bank and that is their right. अब उनके पास ये उनकी responsibility that how they are keeping this with themselves, अपने पास ये कैसे रख रहे हैं, ठीक है? और either they will give me the locker and I am managing that locker, मतलब मैं खुद से उसमें क्या क्या चीजें रख रही हूँ, that is my responsibility. So there are two ways for putting your product in the safe custody. So the first one is the safe custody. Customers जो हैं they will entrust their valuables to the banker for safe custody. उन्होंने बैंकर को सेफ कस्टडी के लिए अपने आइटम्स जो भी वैल्यूएबल्स है वो प्रोवाइड कर दिया. It must be noted that when valuables, securities, etc. are handed over to the banker for the specific purpose of safe custody, ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं किसको, बैंकर को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? आप बैंकर जो है यानी जो बैंक में जो काम कर रहे हैं पर्सन जो आपके अकाउंट को हैंडल करते हैं वगैरह, तो आपने उनको जो भी आइटम्स वगैरह दे दिया है वो आपने उनको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उस सामान का पोजीशन का राइट दिया है, यानी कि वो प्रोडक्ट को जो भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स हैं उसके वो ओनर नहीं है, बट जो पोजीशन है दैट इज ओनली फॉर द टेम्पररी बेसिस, कि उनके पास कुछ टाइम तक वो सामान है और जब तक वो उनके पास प्रोडक्ट है दे आर नॉट गोइंग टू हैंड ओवर इट टू द अदर पर्सन, यानी कि वो प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन को किसी भी सिचुएशन में हैंड ओवर नहीं करेंगे. वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका है, जो पोजीशन मिला है दैट इज फॉर द टेम्पररी बेसिस, दैट फैसिलिटी इज फॉर द टेम्पररी बेसिस, ठीक है?
अब यहाँ पर जो भी सेफ कस्टडी में आपने जो भी वैल्यूएबल्स आइटम प्रोवाइड की है बैंकर को, आइदर यू कैन गिव देम ओपनली, यानी आपने ओपन फॉर्म में उनको दिखा करके उनको दिया कि ये लीजिए मेरे भाई ये टाइटल डीड्स हैं, टाइटल डीड है और आप ये लीजिए, या तो आपने ओपन फॉर्म में दिया, या तो यू कैन यूज अ सील्ड कवर बॉक्स, यानी कि आपने उस सारे वैल्यूएबल आइटम को सील कर दिया और फिर जाकर के बैंक को प्रोवाइड किया, ठीक है। इफ द पर्टिकुलर्स आर टोल्ड टू द बैंकर, द सेम आर टू बी रिकॉर्डेड इनटू द सेफ कस्टडी रजिस्टर, एंड व्हाट यू आर गिविंग और हैंडओवर, जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसका एक प्रॉपरली रिसिप्ट रेडी किया जाएगा, और आप क्या क्या चीजें उस बॉक्स में रखा है आपने वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। The banker issues a receipt for the valuable, which I already told you, वो उनको आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड उसको अपने पास वो सेफ कस्टडी में रखेंगे, और सिग्नेचर वो ले लेंगे कस्टमर से, यानी कि जो भी सेफ कस्टडी में आप सामान रख रहे हो, वैल्यूएबल्स रख रहे हो, वो आपसे सिग्नेचर भी लेंगे, और उसी सिग्नेचर का एक स्पेसिमेन अपने पास रेडी करके रखेंगे, ताकि जब आपको उस अमाउंट को विड्रॉ कराना हो, लेना हो बैंक से, तो सेम सिग्नेचर के साथ यू कैन टेक दैट वैल्यूएबल्स। अगर आपका सिग्नेचर डिफरेंट हुआ या दूसरे किसी पर्सन ने फेक सिग्नेचर करने की कोशिश की, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। तो फॉर्ज सिग्नेचर ना हो या कोई आपके सामान को यूज ना करे, ठीक है। तो इसी वजह से, मतलब कोई सामान आपका लेके ना चला जाए, ये इसी वजह से यू हैव टू साइन ऑन द रिसिप्ट एज वेल एज द फॉर्म, वहां पर फॉर्म में आपको साइन करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ द वैल्यूएबल्स, जब आप वैल्यूएबल्स को विड्रॉ करेंगे, तो जो रिसिप्ट आपको बैंक ने इशू करने के टाइम पे दिया था, लाइक मान लीजिए कि इन 2015 आई जस्ट टेक द फैसिलिटी ऑफ सेफ कस्टडी, so in the 2015 the receipt which I got from the bank, I need to surrender that to the bank when I am withdrawing that valuables from the bank, यानी कि जब मैं उस प्रोडक्ट को, उस वैल्यूएबल्स को बैंक से वापस ले रही हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे उस रिसिप्ट को, जो रिसिप्ट मुझे बैंक ने एज ए एविडेंस दिया था, वो रिसिप्ट को मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। और अगर इन द सिचुएशन, अगर ऐसा होता है कि काफी साल तक आपके पास वो रिसिप्ट है और वो गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में एक लेटर ऑफ इंडेमनिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा बैंक को, कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जो भी सामान ले रहे हो, इससे किसी थर्ड पर्सन को कोई लॉस नहीं है। तब आपको ऐसे सिचुएशन में कोई डुप्लीकेट रिसिप्ट बैंक प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ही आप वैल्यूएबल आइटम्स को जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब या तो पहले, अगर वो कभी भी किसी भी सिचुएशन अगर पहले भी लॉस्ट हो गया, तो यू हैव टू give them the letter of indemnity, and after that you will able to withdraw the valuables from the bank. Okay, if the customer has not declared the content of the box handed over to the banker for the safe custody, the banker must record the description of the boxes etc in the register of boxes. अगर जो भी बैंकर को दे रहे हैं हम, जो भी वैल्यूएबल आइटम्स दे रहे हैं, बॉक्स में करके दिया, और उसके कंटेंट को प्रॉपरली नहीं लिखा कि क्या क्या चीजें इसमें है, तो ऐसे मतलब सिचुएशन में, इफ द कस्टमर हैज नॉट डिक्लेयर्ड द कंटेंट यानी उस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, कंटेंट ऑफ द बॉक्स हैंडेड ओवर टू द बैंकर फॉर द सेफ कस्टडी, बैंकर इस चीज को जरूर मेंशन कर देगा डिस्क्रिप्शन में, जब वो आपके बॉक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अपने रजिस्टर में, तो दैट विल बी मेंशन्ड ऑन योर, बोल सकते हैं आपके जो कॉलम है उसमें वो मेंशन करेगा that the content of this box is not disclosed by the customer, ठीक है। so that will be basically written on your record, आपके रिकॉर्ड में उस चीज को लिख दिया जाएगा, ठीक है। the customer is required to give the exclusive possession over the valuables to the banker and latter should have sole right over them, ठीक है। तो कस्टमर के पास राइट है कि वो एट द टाइम वो आपको क्या देगा, पोजीशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बैंक को पोजीशन हो गए होंगे सारे पॉइंट्स रिलेटेड विद द सेफ कस्टडी। अब बैंकर्स की लायबिलिटी क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। जो बैंकर है दैट दे आर इन द पोजीशन ऑफ डेली एज रिगार्ड्स टू द वैल्यूएबल रिसीव्ड बाय हिम फॉर द सेफ कस्टडी, ठीक है। तो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जहां पर आपके बैंक की लायबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली संभाल के प्रोटेक्शन के साथ उसको रखे, ठीक है।
अगर कोई भी तरीके का नेग्लिजेंस होता है तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे वो इसमें मेंशन है, ठीक है। सो वी आर गॉट द न्यू टॉपिक दैट इज द टेलर सिस्टम। No, ma'am. Okay.